وعملنا بمغفرتك إنك أنت العلي الكبير والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلوق من نعمته ولا ميس من روحه ولا مستنكف من عبادته بكلمته فهم قامت السماوات والسبع واستقرت الأرض المحاد وصبت الجبال الرواسي جرت الرياح اللواقش وصار في جو السماء السحاب فقامت الحدود البحار وهو إله لها وقائل يضل له المتعذر ويتساءل له المتكبر ويدين ويتزأل له المتكبر ويدين له طغى كرها العالمون نعمله كما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما نخفي وما تخفي النفوس وما تجن البحار وما توارى من ظلمات ولا تعذيب عنه غائبة وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمة إلا يعلمها لا إله إلا هو ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويعلم ما يعمل العاملون وأيام أجرا يجرون ولا يوم قلم ينقلب الناس نستهدي الله بالهدى ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسول خلقه وأمينه ألا وحيه وأنه قد بلغ رسالات ربه وجعل في الله الحائدين العادلين به وعبد الله تاتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وصيهم بتقوى الله الذي لا تبرى من نعمة ولا تنفذ من رحمة ولا يستغني العباد عنه ولا يجري الأنعم الأعمال الذي إذا غاب في التقوى وزاد في الدنيا وهذا المعاصي وتازد بالبقاء وزال خلقه بالموت والفناء والموت غاية المخلوقين والسبيل العالمين ومقصود بنواصي الباقين لا يجوز باق الهاربين وعند حلوله يصير أهل الهوى يعدم كل لذة يزيل كل نعمة ويقتل كل بهجة والدنيا دار كتب الله لها الفناء ولأهلها من الجلاء فأكثرهم ينوي بقاء ويعزم بناءه وهي حلوة حذرة قد أجلت للطالب والتبست بقلب الناظر ويزيد الثروة الزيفان يخطو بها ويعتبيها الخائف والوجل فيرتحل منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضركم ولا تطلب من أكثر من القليل ولا تسأل من فوق الكفاف وكفاف ورد منها باليسير ولا تمدن عينيك منها إلى ما مترقبون به واستهيوا بها ولا توطئوها واضروا بأنفسكم فيها وإياك والتنعم والتلاهية والفاكهة فإن في ذلك غفلة وافتراء ألا إن الدنيا قد استنكرت وأدبرت وحلولت وأذنت بوداع ألا وإن الآخرة قد رحلت أقبلت وأشرقت وأذنت باطلاعك ألا وإن المزمار اليوم والسباق غدا ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار ألا فلا تائب من خطيئتك قبل يوم منيتك ألا عامل لنعلك نفسي قبل يوم بؤسه فقر جعل الله وإياك من يخاف ويرجو ثوابه ولئن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعله لكم أعلا فاذكروا الله يذكركم وادعوه فاستجيب لكم وأدوا فكرتكم فإنها سنة نبيكم فريدة واجبة من ربكم فقلبوا بها فليؤدي كل أمر منهم عن نفسه وعن عياله كلهم ذكرهم وأنساهم صغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم من كل إنسان منهم ساعا برا وساعا من تمر أو ساعا من شعير أو وأطيعوا الله بما فرض عليكم وأمركم به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى نسائكم أو ملكت أيمانكم وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة وإتيان الفاحشة وشرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان وشهادة الزور والفرار من الضحك
حسبنا الله وإياكم بالتقوى وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله مغفرة ورضوان. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله. وصل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسولك. اللهم خالف بين كلمة والقرب في قلوبهم وأنزل عليهم من جن رجزك أن يقمتك وباسك الذي لا ترد على القوم المجرمين. اللهم انصر جيش المسلمين وسراياهم ومرابطهم ومشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم بالتقوى زادهم الإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك بما عاهدتهم عليه خالق الخلق. اللهم اغفر لمن خالق الخلق. اللهم قال الله سبحانه في إعزاز محمد صلى الله عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل المرتضى وعلى فاطمة الزهراء التي قالت برافات أبي صبت عليها مصائب الليل والنهار صبت الأيام سرنا لياليها والحسن الشهيد بسم الجفا والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد. اللهم صل وسلم على الحجة القائم المنتظر المهدي وعجل الفرج وسهل المخرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على أنصاره آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفور لمن توفى من المؤمنين والمؤمنات. ولمن هو لاحق بهم من بعدهم إنك أنت العزيز الحكيم. لا يمن بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم فإن الذين ذاكرون لمن ذكر فاسألوا الله من رحمته وقال فإنه يقيم عليه داعٍ لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. हज़रत अभी कुछ लोग आपसे मासूम के लिए पैसा लेंगे इंशाल्लाह आप दें, उसके बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़िएगा और ज़ियारत वारसा होगी। मैंने पूरी कोशिश ये की है कि वक्त के अंदर ख़त्म कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे से भी कम में आपके सामने नमाज भी ख़त्म हो गई, इसलिए कि आपके आज जॉब का दिन है और इसके बाद भी मैं इसलिए आपके जॉब का या आपके हालात का ख्याल रखिए। नमाज होती है यहाँ जो रोज़ नमाज होती है वो 7:30 बजे इंशाल्लाह मगरिब की रोज़ाना जो होती है वो अब रमज़ान मुबारक मतलब अब 7:30 बजे हुआ करेगी इंशाल्लाह। आप अदा से जो हो सके। ये हमारे पास इनकम और एक्सपेंड जो है अक्टूबर का उसका हिसाब है और उसका फ्लैट फ्रंट डेस्क पे रखा हुआ है। अक्टूबर में टोटल कलेक्शन हुआ है 10,143 और टोटल एक्सपेंडिचर जो है इसका है $8,948। इसमें मॉर्गेज, गैस, इलेक्ट्रिक और वाटर, लैंडस्केपिंग और जो छोटे मोटे दूसरे एक्सपेंसेस वो शामिल है। मगर ये ख्याल रहे कि
विंटर में गैस का बिल, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत यानी आएगा लंबा इस दफ़ा, और जो नॉर्मल 1600 से 1800 $2000 का आता था, इस दफ़ा जैसे कि आप सबको मालूम है कि मोर देन 50%, तो 3 से 4000 के दरमियान बिल एक्सपेक्टेड है। लिहाजा जो 10,000 की फिगर मैंने गई थी वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली थी, नॉट एग्जैक्ट, इसलिए कि अराउंड 9000 है, मगर ये कि जो गैस का बिल है वो ज़्यादा आएगा। और इस वक्त हमारे पास जो टोटल फंड्स जमा है वो है $3,238 एज अप टू डे ना। तो लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि जो भी आप मुनासिब समझते हैं मासूम के लिए वो डोनेट कर दें। और फितरा जैसा कि आपको बताया जा चुका था कि $8 पर हेड है, वो बाहर बॉक्स रखा हुआ था, उसमें आप डाल चुके होंगे, और जो नहीं डाल सके थे वो आप डाल दें। नमाज, जो लोग बाद में नमाज पढ़ने आए उनसे गुजारिश है कि फितरा नमाज से पहले निकाल दीजिए, ये मुस्तहब है, वाजिब, माफ़ी चाहता हूँ, वाजिब है, इसीलिए मौलाना साहब बराबर में है जी। तो और ये प्लेज के फॉर्म बाहर रखे हुए हैं, जो हजरात डायरेक्ट मॉर्गेज में अपने प्लेज देना चाहें उसके लिए फॉर्म्स बाहर रखे हुए हैं, वो फॉर्म अपने साथ ले जाएं, और उसमें अकाउंट नंबर भी है, बैंक का एड्रेस, एवरीथिंग इज देयर। वो अपने चेक काट के डायरेक्ट बैंक को भेज दें। जब बैंक से उनका चेक कैश होके आ जाए तो वो आके कैंसिल चेक दिखा के हमसे उसकी रसीद कटवा लें, ताकि जो भी उनको चाहिए रसीद तो हमारा लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि ऑटोमेटेड चेकिंग सिस्टम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह $1800 मंथली जमा हो रहे हैं हमारे। और गुजारिश है कि इसमें कुछ अगर आप मुमकिन चाहें तो इजाफा फरमा सकते हैं, लिहाजा उसके फॉर्म भी बाहर रखे हुए हैं, आप ले जाएं, उसको भर के दे दें, उसके साथ एक कैंसिल चेक लगा के दे देंगे, तो आपकी मंथली डिडक्शन अकाउंट से डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा कि आप हर महीने पेमेंट दें आके। और दूसरी चीज़, बाहर दूसरे फॉर्म्स भी रखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि फॉर्मों की ये क्रेडिट कार्ड के जो फॉर्म्स हैं रखे हुए हैं, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के, उसमें भी आप लेके फिल कर सकते हैं उसको, और बाहर फॉर्म्स रखे हुए हैं उसको डायरेक्ट दे दें। और क्रेडिट कार्ड, हाँ, दूसरी नमाज ईद जो है 9:30 और 10 के दरमियान में दूसरी नमाज ईद अदा की जाएगी। तो जो जिन मोमिन ने अभी तक ईद नमाज नहीं पढ़ी है वो 9:30 और 10 के दरमियान पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें कुछ वक्त दिया। सलमान या, और मैं इंतज़ामिया यानी मासूम की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैं सब मोमिन और मोमनात को ईद मुबारक कहता हूँ। सलवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ख़त्म हो गई, और मेरी कोशिश यही थी कि वक्त के अंदर नमाज हो जाए ताकि आप हज़रत अपने काम पे चले जाएं, और मुझे आपका वक्त लेना भी नहीं है कि मजमा आया है तो वक्त ले लूँ। बस ये है कि आप आते रहें, और इस बात से न घबराएं कि हालात ख़राब हैं। हालात ख़राब कोई भी नहीं, कोई भी किसी किस्म के बेहतरीन हालात हैं, मासूम के भी हर जगह के। ये सब तो जहाँ लोग इतने होते हैं और थोड़ी बहुत बात होती रहती है और वह अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाती है। मगर देखने में बड़ा लगता है दर्द उस वक्त तक जब तक कि आदमी को दवा न मिल जाए। दवा मिलने के बाद फ़ौरन जब सुकून मिल जाता है तो फिर मालूम होता है कि एमआरसी कोई हकीकत नहीं थी।
ना हर मरीज जब तड़पता है किडनी के दर्द में तो ये समझता है कि शायद मर जाऊंगा या अच्छा नहीं होगा। तो आप किसी किस्म की इसलिए कि एक बात याद रखें कि मुस्तज़िफ़ीन के मुकाबले में जब मुस्तकबिरीन आते हैं तो वो आखिर वक्त तक अपनी हरकतें ज़रूर दिखाते हैं। ये तो बहुत मजमा है, मैंने तो 2-3 साल में भी नमाज ईद पढ़ाई है, 1 साल ऐसे भी हालात लोगों ने बनाए थे यहाँ। तो अल्लाह आप यहाँ पर रोज़ाना 7:30 बजे मगरिब की नमाज़ होती है और संडे को सुबह की नमाज़ होती है, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना हो सुबह की नमाज में। और आप हज़रात इस बात की कोशिश करें कि उन नमाज़ों के अंदर शिरकत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह संडे स्कूल भी हमारे जाफ़र अब्बास साहब की अहलिया और उनके साथ और लोग भी हैं माशाअल्लाह, और जाफ़र साहब हैं वो पूरी तवज्जो के साथ कोशिश कर रहे हैं। और मैंने एक बात हमेशा कही, लोग मना करें चाहे कुछ, कि मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, तो आपके सामने नहीं बयान करना चाहता उन बातों को, इसलिए कि आप उनको मोमिन उन लोगों को इंसान भी नहीं समझेंगे जिन्होंने मेरे साथ कुछ हरकतें की हैं। लेकिन मैं दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ करने की तौफीक दे, इसलिए कि सबको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने संडे स्कूल को ख़राब किया या मेरे हाथ जोड़ने के बावजूद मदद नहीं की, उनको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और उनके लिए मैंने कभी कोई बद्दुआ उनके लिए भी नहीं, सिर्फ उनके लिए एक ही दुआ करता हूँ कि मासूम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन तमाम लोगों से हमेशा मासूम को बचा कर रखे। इसलिए कि उसमें मेरा नुकसान नहीं था, मेरी नस्ल का नुकसान था, जो मैंने किया था उसको खुदा देख रहा था। तो बहरहाल, लेकिन याद रखें कि परेशानी सिर्फ इस वजह से है कि हमारी उसमें झूठ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हत्तल इम्कान अपने बच्चों को उस चीज़ से बचाएँ। इसी वजह से एक हदीस आपके सामने उर्दू में ही पढ़ देता हूँ और इंग्लिश में, क्योंकि आजकल ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर की जाती है कि मैं 2-3 बातें आपके सामने कह दूँ। और इंशाअल्लाह जो जुमेरात की यहाँ मजलिस होती है और जुमे की नमाज़ होती है, तो उस जुमे की नमाज़ में तो उर्दू में खुतबा, लेकिन जुमेरात की मजलिस में ये बहरहाल कोशिश की जाएगी कि 10 मिनट तक आपको अंग्रेज़ी में मसाइल बताए जाए या और भी इस्लाम की चीज़ें बताई जाएँ, ताकि जो बच्चे हमारे अंग्रेज़ी जानते हैं वो आके उससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह आप आइएगा। 10 मिनट हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह तक सलवात आजकल एक बात कही जाती है ना, ये कहते झूठ नहीं बोलेगा, अगर हमने झूठ नहीं बोला तो काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में से कह देता हूँ ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो समझ कि ये बात, in fact every act and whatever the prophet said is worth following and putting into practice। जो उन्होंने कहा है उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। in our daily life, prophet whole life is the light of wisdom and guiding। Here we will discuss 2 important aspects of the prophet pause and various life। उनकी तो ख़ास चीज़ें इसलिए कि एक सरकार की एक हदीस मुझे आपके सामने, इसलिए मैंने उसको तर्जुमा करके इंग्लिश में रखा है कि इसको बांधने के झूठ को कितना मना किया गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस डेज इट इज़ जनरली सेड दैट यू कैन नॉट सक्सीड बाई बीइंग राइट एंड ट्रूथफुल एंड यू शुड डॉज पीपल बाई यूजिंग falsehood and stick to it so much that it would look true। यानी आप आदमी आजकल बहुत कहता है कि झूठ नहीं बोले काम कैसे चलेगा, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। First we will discuss in one things and will proceed further। It is not the time to be truthful, you cannot succeed by being truthful। Say lie to such an extent that it will appeal to truth। ये जो हमारा एक नारा है आजकल, ऐसा नहीं है। Remember and again remember that nothing will stop the life on earth except if you do not obey and apply as the fundamentals of life and guiding factors in our holy book Quran। Those who tell lie, Allah curse is on him। अब अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करेगा, पनिशमेंट, जिस पर अल्लाह अजाब नाजिल करेगा वो अमल कभी अच्छा नहीं हो सकता। As far as to stick on lies, it is a fact that lies will get exposed if you call poison our medicine, poison will not become medicine। अगर आप जहर को दवा कहें तो दवा नहीं हो सकती। It will remain as poison, like darkness is darkness and light is light। In our holy book and prophet saying also condemns lies। तो उनकी एक हदीस में सुना देता हूँ आखिर में आपके सामने। Prophet says that he who
relies on lies has the key to evil and find himself buried deep in evil and no way out for goodness. वो एक आदमी ऐसे कमरे में बंद हो जाता है जो झूठ बोलता है जिससे कभी वो रोशनदान या विंडो देख नहीं सकता है, कोई भी विंडो सच्चाई की अच्छाई की। सलावत देंगे मोहम्मद You must have heard about this before, but to repeatedly to reading, saying, and listening, the acts of good deeds will open the mind and heart and will lead to goodness and holy acts. Keep reciting or saying good things is good for mu'minin. O Allah, by the grace of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, children and family, protect us all from the evil and sin, of wrongdoing and lies, and always keep us on the right path shown by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मुझे इस बात का ख्याल था कि आपको जल्दी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप बस से चले जाएं, सिर्फ अब दुआ की जाएगी और बस ये गुजारिश है कि आप जो यहाँ के प्रोग्राम होते हैं और जुमे की नमाज मालूम है आपको मजबूरी है कि जवाल के अलावा नहीं हो सकती, 11:30 के आसपास जो वक्त है उसी वक्त जुमे की नमाज भी जैसी होती है वैसी होगी और आज भी जुमे की नमाज होगी। ये नहीं कि इसकी बहुत जगह ये मशहूर है कि अगर ईद जुमे को पढ़ जाए तो जुमा नहीं पढ़ा जाता, ऐसा नहीं है, हाँ, बल्कि जुमे का सवाब बढ़ जाएगा एक की बिना पर। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अनतल महमूद बेहक अली अनतल अला बेहक फातिमा अनत फातिह समावात वल अर्ज़ बेहक हसन व अनतल मुहसिन बेहक हुसैन व अनत क़दीमुल इहसान बेहक अइम्मत तसय्यिद मिन ज़ुर्रियत हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे जुमला मरहूम को जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे बुजुर्ग जिंदा उनके साए के मसलों पर कायम दायम, उनके माँ बाप है उनमें से कोई जिंदा उनके साए के मसलों पर कायम दायम, उनके बच्चों को उनकी खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमा। परवरदिगार हमारे बच्चों को मोहब्बत अहले बैत का कायम, उनको उठने वाले उसके किरदार की तौफीक मरहमत फरमा। हमारी बहनों और बेटियों को इसमें कोई इफ़्फ़त इनायत फरमा, उन्हें हिजाब की अहमियत समझ कर परवरदिगार हिजाब करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हम जो लोग रोजगार के लिए परेशान उनको बेहतरीन रोजगार मुहैया फरमा, रोजगार से लगे उनको रोजगार में जितना तौक़ीर इफ्तिखार और सरबंदी इस्तेहकाम इनायत फरमा। जो मुस्लिम जो मखरूज़ मुस्लिम गरीब इस्लाम करते हैं उनको कर्ज़ अदा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते जो साहिब अहलियत में खैर बरकत इनायत फरमा। कुछ लोग बहुत सख्त बीमार हैं, खासतौर से नाज़िया दुर्रानी ज़ाकिरा हैं, वो बहुत बीमार हैं और भी कुछ लोग बीमार हैं। परवरदिगार मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और बीमार करबला के सदक़े में शफ़ाए कामिला और आजिला महमत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है हमारे उलमा इलाम के सारे मसलों पर कायम दायम रखना, आसिफ़ातुल्लाह सिस्तानी को कुल उम्र का फरमा। परवरदिगार उनके सारे मसलों पर कायम दायम रखना, उनके फरमान पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे मशाइख मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमको बार बार ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है शाह जहाँ जहाँ उनके जान माल की हिफाजत फरमा। खास तौर से पाकिस्तान सबसे में इराक़ पशियत की हिफाजत फरमा। ज़िंदगी में किसी तरह के इम्तिहान ले तो हमारी आबरू को सलामत रखना, नेमत अता फरमा तो शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मालिक दुनिया को फसाद फैलाने वालों से महफूज रख, खुलूस से काम करने वालों के इस्तेहकाम में इजाफा फरमा। जो लोग परवरदिगार मुश्किलात में गिरफ्तार हैं उनकी मुश्किलों को मुझे खुशहाली से दूर फरमा। उनके औलादों को उनके बेटे बेटियों की शरीयत के बेहतरीन मुस्तक़बिल का जरिया करार दे, उस सिलसिले में मुकम्मल खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार जिला औलाद इनायत फरमा, साहब में गुफ्तगू अपने फ़राइज़ सबूत अच्छी मौका इनायत फरमा। हमारे तमाम हालात को परवरदिगार लुत्फ़ कर ख़ास इस तरह बेहतर बना दे कि हमें खुद ताजुब हो ने कैसे बनाया है। कि परवरदिगार मोहम्मद में हर वक्त शुक्र करने की तौफीक मरहमत फरमा, हर सांस शुक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, गुज़श्ता ज़िंदगी की तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। तूने हमको माह मुबारक में तोहफ़ा सवाब का अमल खैर का दिया है, उसकी हयात हिफाजत करने को उसमें इजाफा करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे दिल को हब्बे दुनिया से पाक रखे जवाब तक़वा से मुज़य्यन फरमा। जितने लोग नमाज़ पढ़ने आए यहाँ पर इनके मुतालिक़ हाज़िर खाए सबको तमाम खैर अता फरमा, हर बला से महफूज़। और ज़लज़ले में तकरीबन 20,000 तकरीबन मोमिनीन भी मुतासिर हुए हैं।
आप दुआ फरमाए कि परवरदिगार जो दुनिया से आखिर के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके पसंदीदान को अल्लाह तस्कीन इनायत फरमाए। परवरदिगार हर मक़ाम और सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और एक ऐलान और है कि हमारे बहुत से लोग हज का काफ़िला लेके जाते हैं और यहाँ से आप अगर हज इसलिए कि हज की बहुत ताकीद है, कहा गया है कि जो हज इस्तिताअत रखे भी न करे वो दुनिया से मुसलमान का उठना मुश्किल है। तो जो लोग जाना चाहते हैं, हमारे आदमी साहब का काफ़िला भी जाता है, तो तहजीब जदी साहब टीजी ट्रैवल वाले उसको डील करते हैं, आप उनसे रब्त कायम कर सकते हैं और दुआ करें कि मोहम्मद वाले में सकते हैं। इंशाअल्लाह इस साल मैं भी हज की शहादत हासिल करना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह जाए तो अल्लाह शान से ले जाते हैं, पर शान से इंशाअल्लाह क्या बना सकते। आप 2 रकात ज़ियारत है इमाम हुसैन इस्लाम की नमाज़ पढ़ने फिर ज़ियारत वाला साहब। ऐसा पढ़ता हूँ मैं अपनी जुमला मोमिन मुमिनात हाज़िर व गायब जिंदा मुर्दा हर एक की तरफ से क़ुर्बत अल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद नबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलील मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़दीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या अंसारल्लाह व इब्न अंसारिह والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأعطت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعل أمة قتلتك ولعل أمة ظلمتك ولعل أمة سمعت بذلك فرضيت بك يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بإنجاسها ولم تلبسك من ظلمات ثيابها وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي
وأشهد أن الأئمة من ولي كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أن لا ملائكة وأنبياء ورسل وأني بكم ومن بإياه بكم موقن بشرائع دين وخواتيم عمل قلبي لقلب مسلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله سلامه عليكم وعلى أرواحكم وعلى أصحابكم وعلى أصحابكم وعلى شهادكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زاد شهادة الأكبر الإسلام فقط الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن حسين يا ابن حسين الشهيد أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعل أمة قتلتك لعل أمة ظلمتك لعل أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحباؤه السلام عليكم يا أصفياء الله وأعزاؤه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد بن علي ولي زكي الناصح العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما وهي التي كنت معكم فأفوز معكم يا جماعة الإسلام فقط الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين والسيد الوصين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونصرت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين لحقهم بدرك الجحيم يا شيخ رسول الإسلام فقط الله السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس السلام عليك مغز الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا رحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 الغياث 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 أغث يا غياث المستغيثين السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن جعلنا من أمانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته يا عباد الله أشهد أنك تشهد مقامي تسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترزق فصل ربك ربي في قضاء حوائجي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين والورود ثبت في قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجم دون الحسين عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل एक बार सूरह फातिहा की तिलावत फरमाए जुमला मोमिनीन अजल ज़लज़ले में दुनिया से गए उनके और शुहदाए इराक़ के इसाले साफ फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जिन मुबनी में दूसरी अभी नमाज 10 मिनट के बाद दूसरी नमाज शुरू होगी 10-15 मिनट के बाद जिन मुबनी ने नमाज नहीं पढ़ी है वो इंतज़ार फरमाए मौलाना ये बोल जाए इसके बाद वो नमाज एक पढ़ा जाए 9:45 बजे ठीक 9:45 बजे दूसरी नमाज ईद शुरू होगी तो मुबनी इंतज़ार फरमाए और ईद के लिए नमाज जहर में नहीं पढ़ी दोबारा ठीक 9:45 बजे शुरू होगी। मजीद से गुजारिश है कि ऊपर जो फितरे के डब्बा है और मासूम के फंड्स का
वो नीचे जेंट्स को भिजवाते हैं। मासूम की इंतजामिया जमजम फूड्स की बेहद मशहूर है कि मुसलसल 2 साल से वो ईद के लिए जो रिफ्रेशमेंट आता है उसमें वो काफ़ी हमसे कोऑपरेशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मासूम की इंतजामिया जमजम फूड्स की बेहद मशहूर है। जैसा कि मोमिन आप लोगों को चंद हज़रात को शायद मालूम हो, जब को ना मालूम हो, यहाँ पे मासूम में मैयत खाना तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैयत खाने में मैयत को गुस्ल देने का इंतज़ाम पूरा मौजूद है और एक मोमिन की नमाज से मैयत यहाँ पे लगाई दी जाती है। जो मोमिन अपना फंड्स मासूम को देना चाहें, बाहर अपने हमारे वॉलंटियर बैठे हैं। इसके अलावा डोनेशन बॉक्स भी रखा हुआ है, अपने एहतियात उसमें डाल सकते हैं। और चाहे तो अगर रसीद चाहिए तो उसके लिए वो हमारे जसंफर भाई बाहर बैठे हैं, उनको फंड देते से रसीद लें। और जिन मोमिन ने मेंबरशिप ड्यूज अदा नहीं किए, जिन मोमिन ने अपने मेंबरशिप ड्यूज अभी तक अदा नहीं किए, वो 15 नवंबर तक अपने ड्यूज पे कर दें। मोमिन से गुजारिश है कि बाहर रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है और वो रिफ्रेशमेंट कर लें। और इसके अलावा मासूम की इंतजामिया की तरफ से एक और ऐलान है कि मासूम की प्रीमिसेस में आप कोई कॉर्पोरेट मासूम की इंतजामिया की बगैर परमिशन के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये वायलेशन है, इसके लिए प्लीज़ आप लोग परहेज करें कि जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले आप इंतजामिया को दिखाएं, उनसे अप्रूवल लें। अगर वो आपको परमिट करते हैं तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मासूम की प्रीमिसेस में कोई कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। शुक्रिया। मोमिन से गुजारिश है कि सफाई कर दें। दूसरी नमाज 9:45 बजे ठीक शुरू होगी, लिहाजा जब नमाज शुरू होने में लिहाजा अपनी सफाई करें। जुमे की नमाज ठीक 12:30 बजे शुरू होगी। नमाज जुमा जो है वो ठीक 12:30 बजे शुरू होगी
जोहर का अव्वल वक्त जो है 11:30 बजे, चूंकि घर का वक्त तब्दील हो गया है, लिहाजा नमाज जो है वो ठीक 11:30 बजे अदा की जाएगी जुमे की नमाज। तो मम्मी से गुजारिश है कि नमाज पढ़ के शुरू में बहुत ज्यादा था। हम तो अपने बढ़ जाता, हम तो निकल जाएगा करीब में तो